In today's lecture, we are going to start our physical pharmacy, and we have almost completed around 45% of your whole syllabus. And in today's lecture, we are going to discuss about the one chapter from physical pharmacy, which is very important. If you see the previous year's papers, consistently they are asking a question, one or two questions from this chapter, and this chapter is very much important about the micromeritics. Okay, so each and everything will not be discussed, but whatever is important for GPAT Niper and other exams, that will be discussed over here. Please try to mute yourself and listen carefully. So welcome you all, good morning to all, and welcome you in today's session. Today we are going to discuss one chapter, that is micromeritics, which is very much important chapter as far as your competitive exams are concerned. GPAT Niper DI Pharmacist, all exam. Okay, so if you see the previous year papers, they are consistently asking questions from physical pharmacy. They are asking around 5 to 7 questions from physical pharmacy, and those 5 or 7 questions, they are spreaded in a different chapter. Okay, what are the important chapter from physical pharmacy? That are nothing but your micromeritics, rheology, chemical kinetics, surface tension, interfacial phenomena, phase rule, and these are the 5 or 6 chapters. Those are very much important as far as your GPAT Niper is concerned. So first of all, what do you mean by micromeritics? What is the term micromeritics indicates? What do you mean by micromeritics? As you are able to see on the screen, micro means size in a micron. Okay, and meritics means the measurement. Okay, so what is meant by micromeritics? The measurement of size in microns, and size of whom? Kiska size of various powders. Okay, size of various particles. Okay, so measurement of size of particles in the micron, that is nothing but the micromeritics. Okay, so it is a study of particle characteristic in the micron. So you have different powders, you have different particles in your pharmaceuticals. कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वेरियस काइंड के पाउडर्स होते हैं, जैसे आपका टाल्क पाउडर हो गया, या फिर आपका सल्फा ड्रग का फॉर्मुलेशन है तो सल्फा ड्रग का पाउडर हो गया, या पैरासिटामोल का पाउडर हो गया. ओके, सो एपीआई. सो यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पाउडर्स. ओके, बट यू हैव टू कैरेक्टराइज दैट कि ये पाउडर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि पाउडर का पार्टिकल साइज क्या है इसका, या फिर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि आपको after all आपको formulation बनना है. After all you have to make a formulation, so you have to characterize that particles, you have to characterize that powder. Okay, so for that there is one term known as a micromeritics. Okay, so measurement of particle size in micron, that is nothing but the micromeritics. Okay, so you have to characterize the particles or particle size distribution of powder, then particle size of powder. You have to characterize these kind of things in your pharmacy, because you have to formulate a formulation. So what are the different characteristics that can be characterized for the powders? What are the different characters of powder? So it is having shape, it is having particular shape, it is having particular size, then particular volume, particular density, surface area, porosity, flow, and their associated properties. So these are the different characteristics of powder that can be powder can be characterized based upon these terms like size, then shape, then volume, then density, then surface area, porosity, and flow associated properties. Okay, flow properties and associated properties. So these are the terms, these are the characters. So powders can be characterized by depending upon these terms. Okay, for example, coarse powder, fine powder. Okay, uniform powder, non-uniform powder, mono size powder, poly dispersed powder, large volume powder, large volume powder or less volume powder, density difference, surface area, powder having a huge surface area, powder having a narrow surface area, like that. Porosity, very porous powder, non-porous powder, like that. So you have to characterize the powders in terms of these things. Okay, that is shape, size, then volume, density, surface area, porosity, flow properties. Flow properties means freely flowing powder, then cohesive powder or free flowing powder, then excellent flowing powder. Like, okay, normally size is given in the microns in this chapter. Okay, so what is micron? 1 micrometer is equal to 10 raised to minus 3 millimeter. Remember, 1 micrometer is equal to 10 raised to 3
10 raised to minus 3 millimeter. Okay, same thing, 1 micrometer is equal to 10 raised to minus 6 meter. 1 micron is equal to 10 raised to minus 3 millimeter. Same, minus 6 meter. Okay, the term, there is one another term known as a nanometer. Okay, the term milli micrometer or nanometer. Nanometer is nothing but milli micrometer. So it is around 10 raised to minus 6 meter, or it is a 10 raised to minus 6 millimeter, or 10 raised to minus 3 micrometer. Okay, 1 micrometer is equal to 10 raised to minus 3 millimeter. ठीक है, मिलीमीटर मालूम है आपको, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. ठीक है, तो 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? 10 raised to minus 3 मिलीमीटर. ठीक है, और वही 10 raised to 6 मीटर होता है. 1 माइक्रोमीटर इज आल्सो इक्वल टू 10 raised to minus 6. ठीक है, देन मिली माइक्रोमीटर और नैनोमीटर. So 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 or 10 raised to minus 6 mm or 10 raised to minus 3. What are the applications of this micromeritics in our pharmaceuticals? कि आप माइक्रोमेरिटिक चैप्टर्स पढ़ते हो, माइक्रोमेरिटिक चैप्टर पढ़ते हो, लेकिन क्या इंपॉर्टेंस क्या है उसका? व्हाट आर द एप्लीकेशंस? सो द माइक्रोमेरिटिक्स, द स्टडी ऑफ पार्टिकल्स इन द माइक्रोन इज वेरी इंपॉर्टेंट because to it is very important and it is applicable in a various departments of pharmaceuticals. Okay, to study the release and dissolution. So if you know the particle size, you know that particle size is inversely proportional to the surface area, and if more is the surface area, more will be the dissolution. Okay, so particle size inversely proportional to the surface area, sorry, inversely proportional to the dissolution. As the particle size increases, dissolution will decrease. As the particle size will decrease, dissolution will increase. Okay, so that's how this particle size is very important for dissolution. It is also applicable, this micrometrics is also applicable for absorption of drug action. Absorption and drug action, it is very important for absorption and drug action. As you know that decrease in particle size will increase the absorption. Okay, decrease in particle size will cause higher dissolution, and in turn it will cause higher bioavailability. अगर पार्टिकल साइज कम है आपका कोई भी पाउडर का, तो उसका एब्सॉर्प्शन जल्दी होगा. अगर एब्सॉर्प्शन जल्दी होगा तो उसका डिसोल्यूशन जल्दी होगा, डिसोल्यूशन जल्दी होगा तो एब्सॉर्प्शन जल्दी होगा, एब्सॉर्प्शन ज्यादा जल्दी होगा तो बायो अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगा. ठीक है, मींस इट इज एप्लीकेबल टू ड्रग रिलीज, डिसोल्यूशन, एब्सॉर्प्शन एंड ड्रग एक्शन. देन अगेन योर माइक्रोमेरिटिक्स इज एप्लीकेबल फॉर फिजिकल स्टेबिलिटी. मींस it has been observed that smaller will be the particle size, better will be the stability in case of, for example, in case of dispersion due to its Brownian motion. ठीक है, जो पार्टिकल साइज कम होता है तो उसमें ब्राउनियन मोशन रहता है, ब्राउनियन मूवमेंट रहता है. जैसे आप डिस्पर्शन का एग्जांपल ले लेंगे, तो डिस्पर्शन में पार्टिकल साइज कम होगा तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा. ठीक है, मींस फिजिकल स्टेबिलिटी. अगेन दिस माइक्रोमेरिटिक्स इज also applicable for uniformity of content. Okay, uniformity of content, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज अगर होगा तो पार्टिकल यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज होगा, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ऑब्वियसली इट विल गिव यूनिफॉर्म डोसेज, यूनिफॉर्मिटी इन द डोसेज. अगर मान लीजिए कि आपने एक टैबलेट फॉर्मुलेट किया है और उसमें क्या किया आपने, पैरासिटामोल का टैबलेट फॉर्मुलेट किया है और उसमें पार्टिकल साइज का ध्यान ही नहीं दिया आपने, मतलब टाल का पार्टिकल साइज अलग लिया, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज नहीं लिया, पैरासिटामोल का पार्टिकल साइज अलग अलग लिया. ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि पार्टिकल साइज अलग होने की वजह से यूनिफॉर्म एब्सॉर्प्शन नहीं होगा, यूनिफॉर्म उसका बायो अवेलेबिलिटी नहीं होगा. ओके, तो यूनिफॉर्म बायो अवेलेबिलिटी नहीं होगा मतलब यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट भी नहीं है. ठीक है, सो यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट इज आल्सो impacted by your micrometrics or particle size distribution. So these are the few applications of particle micrometrics in the formulations in the pharmacy. Okay, so these are not much important, but this is important. They can ask you question on this. Okay, so what is 1 micrometer is equal to 10 raised to 6 10 raised to 6 meter, 10 raised to 3 10 raised to minus 3 millimeter, 10 raised to minus 6 meter. Then 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meter or 10 raised to minus 6 millimeter or 10 raised to minus 3 micrometer. Okay, so this is important. Now characteristics of powder. Okay, so powder can be characterized by different terms. कि पाउडर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपन, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा. सो पाउडर का डिस्क्रिप्शन और पाउडर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डिफरेंट टर्म्स. ओके, सो पाउडर कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय depending on its size, shape,
volume and surface area. Some of them, these are the fundamentals, whereas some of them are derived properties. Okay, so what is fundamental property? Its size, shape and volume. Okay, that is the fundamental pharmacy, fundamental property. And rest of the properties like porosity, your density, all that are the derived properties. Remember, particle size. What is meant by particle size? Particles, there are different kind of particles. Either it may be spherical or it may be irregular. Okay, सिमेट्रिकल हो सकता है पार्टिकल या फिर असिमेट्रिक हो सकता है. सिमेट्रिक मतलब क्या? मान लीजिए कि आपके सामने एक स्पीयर है, राउंड है, राउंड स्पीयर इज नथिंग बट द राउंड. ओके, इट इज अ सिमेट्रिकल. सो most of the pharmaceutical powders are asymmetrical in nature. They are asymmetrical in nature. जो अपन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में जो पाउडर यूज करते हैं उसमें के ज्यादातर पाउडर्स एसिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक नहीं होते, मतलब उनका शेप एसिमेट्रिक होता है. ओके, सो ड्यू टू asymmetrical nature of most of the pharmaceutical powders or particles, it can be expressed as a equivalent diameter of sphere. कि असिमेट्रिक पार्टिकल है तो आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ तो स्टैंडर्ड होना मांगता है आपके पास, उसको कंपेयर करने के लिए आपके पास कोई तो स्टैंडर्ड होना मांगता. एंड व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड इज नथिंग बट योर सिमेट्रिक पार्टिकल. सिमेट्रिक पार्टिकल इज कंसिडर्ड एज अ स्फीयर. अगर आप राउंड स्फीयर अगर कंसिडर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में बाकी के पाउडर शेप जो है, बाकी के पार्टिकल शेप जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, और उसको डिस्क्राइब करते हैं और बाकी का जो पार्टिकल जो इरेगुलर पार्टिकल है या फिर असिमेट्रिक पार्टिकल है उसका साइज कैसे डिटरमाइन करेंगे आप? सो दैट इरेगुलर साइज ऑफ इरेगुलर पार्टिकल, साइज ऑफ असिमेट्रिक पार्टिकल इज मेजर्ड इन कंपैरिजन विद दैट ऑफ स्फीयर, which is a symmetric particle. स्फीयर क्या है? सिमेट्री है स्फीयर को. लेकिन आपका जो एसिमेट्रिक पार्टिकल है या फिर आपका जो पाउडर है उसमें डिफरेंट शेप के क्रिस्टल्स या डिफरेंट शेप के पार्टिकल्स होंगे. ओके, सो दैट पार्टिकल्स आर कैरेक्टराइज्ड इन कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड वन, दैट इज नथिंग बट द स्फीयर. ठीक है, स्फीयर के साथ में उसका कंपैरिजन करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली उसका पार्टिकल साइज मेजर करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट टर्म्स होते हैं, डिफरेंट डायमीटर्स होते हैं. ओके, सो विल सी दैट. सो फर्स्ट इज द सरफेस डायमीटर. Surface diameter, these are very important. See, they can ask question on this. Surface diameter. So it is denoted by ds. Okay, so what is surface diameter? Diameter of sphere having same surface area as that of symmetric particle. अगर symmetric particle का और आपके asymmetric particle का diameter सेम है तो उसको बोलेंगे surface diameter. ठीक है, diameter of sphere having same surface area as that of symmetric particle, as that of asymmetric particle. Diameter of sphere having same surface area as that of asymmetric particle. मीन्स अगर ए आपका जो asymmetric particle है, irregular particle है, irregular particle, उसका अगर surface area है उसका तो सेम है किसके साथ? स्फीयर के साथ, तो उसको बोलेंगे surface diameter. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द volume diameter. If the volume diameter, what is meant by volume diameter? If the diameter of sphere and diameter of your asymmetric particle is same, then it is a volume diameter. It is the diameter of sphere having same volume as that of a asymmetric particle. Okay, next one is a projected area diameter. Okay, so what is it? It is nothing but the diameter of sphere having same area as that of a asymmetric particle when observed under microscope. इसमें क्या होता है कि आपका जो स्फीयर है, मान लीजिए आपका स्टैंडर्ड है स्फीयर, उसका जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ स्फीयर हैविंग सेम एरिया, उसका जो स्फीयर का एरिया है वो जितना है, मान लीजिए कि उसका स्फीयर का एरिया है 10 mm क्यूब, उतना ही एरिया अगर आपको एसिमेट्रिक पार्टिकल का मिलता है तो उसको बोलेंगे डायमीटर, उसको बोलेंगे प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर. सो इट इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर हैविंग सेम एरिया एज दैट ऑफ एसिमेट्रिक पार्टिकल व्हेन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट वन इज Stokes diameter. Next one is Stokes diameter. Next one is Stokes diameter. Now, what is meant by Stokes diameter? It is the diameter of sphere having similar sedimentation rate as that of asymmetric particle. अपन क्या कर रहे हैं? asymmetric particle जो है आपका फार्मास्यूटिकल्स में कितना क्या है? फार्मास्यूटिकल्स पाउडर जो होता है उसमें क्या होता है कि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसका शेप रेगुलर नहीं रहता, उसका शेप सिमेट्रिकल नहीं रहता, तो उसका एसिमेट्रिक शेप रहता है. तो उसको अपन कैरेक्टराइज कर रहे हैं किसके साथ में? आपका सिमेट्रिक पार्टिकल के साथ में.
सिमेट्रिक पार्टिकल कौन है यहाँ पे? स्पीयर। स्पीयर आपका सिमेट्रिक पार्टिकल है और आपका जो फॉर्मुलेशन में बनाने वाले आप पाउडर, जो फार्मास्यूटिकल्स पाउडर्स होते हैं उसमें तकरीबन तकरीबन एसिमेट्रिक पार्टिकल होते हैं। तो एसिमेट्रिक पार्टिकल कैसे मेजर करेंगे आप? तो उसको कंपैरिजन करके डायमीटर डिफाइन करना पड़ेगा। कंपैरिजन किसके साथ में करेंगे? स्पीयर के साथ में। तो उसके साथ स्पीयर के साथ में कंपैरिजन करके जो डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर मिलते हैं आपको, सरफेस डायमीटर, वॉल्यूम डायमीटर, प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर, स्टोक्स डायमीटर, तो उसके बाद में आप उसका पार्टिकल साइज निकाल सकते हो। ठीक है, तो व्हाट डू मीन बाय स्टोक डायमीटर? डायमीटर ऑफ स्पीयर हैविंग सिमिलर सेडिमेंटेशन रेट एज दैट ऑफ एसिमेट्रिक पार्टिकल। अगर एसिमेट्रिक पार्टिकल है और स्पीयर है, वो साथ उनका जो सेडिमेंटेशन रेट है वो अगर सिमिलर है तो उसको बोलेंगे स्टोक्स डायमीटर। उनका सेडिमेंटेशन रेट दोनों का सेम है तो उसको बोलेंगे स्टोक्स डायमीटर। ठीक है, तो उसके इसके बेसिस पे ही आगे there are different methods to measure the particle size of there are different methods to measure particle size based upon these diameters only. Okay, next one is a sieve diameter. So it is a diameter of sphere that passes through the same sieve mesh aperture as that of the asymmetric particle. मतलब अगर ऐसा कोई sieve mesh है जिसमें आपका स्पीयर भी पास होता है और एसिमेट्रिक पार्टिकल भी पास होता है तो उसको बोलेंगे sieve diameter। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ volume surface diameter. Okay, so what is it? Diameter of sphere having same volume surface area ratio as that of the asymmetric particle. अगर आपका asymmetric particle है और sphere है और उनका दोनों का वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो दोनों का सेम है, वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो अगर सिमेट्रिक पार्टिकल एसिमेट्रिक पार्टिकल का और स्पीयर का अगर सेम है तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम सरफेस एरिया डायमीटर। ओके, because these terms are very important, they used to ask these terms on the in the exam. Okay, GPAT के लिए, नाइपर के लिए ये सब important है। जैसे क्या what do you mean by surface area diameter, what do you mean by volume diameter, what do you mean by stroke diameter, sieve diameter। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, इसका मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, ठीक है, these are the different kind of diameters and based upon these diameters you can measure the particle size. Okay, there are different methods to measure the particle size which we are going to see in upcoming slide, don't worry about it. जो particles होते हैं उसका different shapes होते हैं, so there are different shapes of particle. It may be either spherical smooth, it may be either spherical rough, it may be either spherical irregular, it may be rounded, angular, elongated, irregular, acicular, angular, dendritic. There are different shapes of particle. ठीक है, तो आइडियल मतलब आप पार्टिकल का साइज कब मेजर कर सकते हो, पार्टिकल साइज का कैरेक्टराइज कब कर सकते हो आप? इफ द पार्टिकल्स ऑफ पाउडर इज यूनिफॉर्म इन द साइज, यूनिफॉर्म इन द शेप। ठीक है, लेकिन क्या होता है मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल पाउडर्स उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है। ठीक है, पार्टिकल एसिमेट्रिक होता है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू डिफाइन दीज टर्म्स। ओके, नाउ शेप फैक्टर, देयर इज वन टर्म, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शेप फैक्टर। ठीक है, इसके बारे में जीपैट में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ऑलरेडी दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन दिस, वी वाज डिस्कसिंग लास्ट पॉइंट। सो सर shape factor, it is very important. Okay, shape factor is the ratio of surface area factor to the volume factor. ठीक है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया फैक्टर टू द वॉल्यूम फैक्टर ऑफ द पार्टिकल। ओके, कोई भी पार्टिकल है उसका अगर आपने सरफेस एरिया फैक्टर जो है उसका और वॉल्यूम फैक्टर जो है उसका रेशियो निकालेंगे तो उसको बोलेंगे शेप फैक्टर। ठीक है, और जब स्पेयर लेते हैं, स्पेरिकल पार्टिकल लेते हैं आप, स्पेरिकल पार्टिकल लेते हैं तो उसका शेप फैक्टर आता है 6। ठीक, शेप फैक्टर ऑफ स्फीयर इज 6, स्फीयर का शेप फैक्टर कितना है 6। अगर इससे ज्यादा किसी पार्टिकल का शेप फैक्टर होगा, अगर इससे ज्यादा कोई पार्टिकल का शेप फैक्टर आता है उसको बोलेंगे एसिमेट्रिक पार्टिकल। स्फीयर का कितना है शेप फैक्टर 6, मतलब स्फीयर इज अ सिमेट्रिकल पार्टिकल। ठीक है, इफ एनी पार्टिकल हैविंग शेप फैक्टर मोर देन दिस, दैट इज अ asymmetric particle. Remember, okay. Characteristics of powder. Okay, so what are the different characteristics of powder? So powder size is there, powder particle number are there, then surface area, then volume, flow properties and density. These are the characteristics of powder. You can characterize a powder, you can classify the powder depending upon these terms. ठीक है, these are the characteristics of powder. ठीक है, तो अपन देखेंगे one by one, don't worry. So what do you mean by powder size? First is the powder size. So what do you mean by powder? Powder is nothing but the collection of your particles. Okay, कि मान लीजिए कि आपके पास एक पाउडर है, टाल्क पाउडर, कि वो पाउडर मतलब क्या है, पाउडर में क्या है पार्टिकल्स है,
पार्टिकल्स किसके, टाल्कम के जो पार्टिकल्स है वो, और एक पार्टिकल निकलेंगे तो उसको बोलेंगे पार्टिकल, और वो अगर कलेक्शन करेंगे उस पार्टिकल का उसको बोलेंगे पाउडर। मान लीजिए कि आपके पास 1 ग्राम पाउडर है और उसमें कुछ थाउजेंड्स पार्टिकल्स है, मतलब पाउडर इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। ओके, सो इफ पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्म साइज, अगर वो पाउडर में पार्टिकल का साइज सेम है सिमिलर साइज है, so if they are uniform in size, if the particles of powder are uniform in the size, you call it as a monosize or monodisperse. You call it as a monosize or monodisperse powder. If the particle size of powder is uniform, then the powder is known as monosize or monodisperse powder. Okay, now actually most of the time there is no monosize or monodisperse powder in the pharmaceuticals. You have to make it. So how you can make? So you can obtain a monosize or monodisperse powder by subjecting the powder to sieving. आप अगर उसको सीविंग करेंगे, मान लीजिए कि आप 120 से अगर कोई पाउडर पास करते हो और नीचे जो पाउडर मिलता है आपको आफ्टर सीविंग, दैट इज अ मोनोसाइज पाउडर और दैट इज अ मोनोडिस्पर्स पाउडर, बिकॉज यू आर गेटिंग अ डिजायर्ड मेश सेपरेशन साइज ऑफ दैट पाउडर। ठीक है, आपको एक प्रॉपर साइज मिल रहा है, उसको बोलेंगे मोनोसाइज और मोनोडिस्पर्स पाउडर। Okay, but why you have to obtain you need monosize or monodisperse powder? Because monosize powders are used to standardize the particle size analyzer. ठीक है, पार्टिकल साइज एनालाइजर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप पार्टिकल साइज एनालाइज कर सकते हो, पार्टिकल साइज डिटरमाइन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए ना, तो स्टैंडर्ड कौन है, मोनोसाइज पाउडर। Okay, so monosize powder they are used to standardize the particle size analyzer. Then accurate determination of pore size of filter. अगर कोई फिल्टर है आपके पास, उसका पोर साइज कितना है वो डिटरमाइन करना है, तो अगेन आपको यूनिफॉर्म साइज का पाउडर चाहिए, दैट इज अ मोनोसाइज पाउडर। ओके, देन इफेक्टिव इम्यूनाइजेशन, जो एंटीजन, जो इम्यूनाइजेशन के लिए एंटीजन होता है, तो दैट इज एड्स ऑफ ऑन द पाउडर पार्टिकल। ठीक है, एंड दैट इज इंजेक्टेड इन द humans to immunize the subject for a particular disease. Okay, so that powder should be uniform. So diagnosis, so these are the uses of powder size, monosize or monodisperse powder. Now most of the powders used in pharmaceuticals, they are a polydisperse. Polydisperse means non-uniform particle size. Monodisperse मतलब इसका पार्टिकल साइज क्या है, यूनिफॉर्म होता है। पॉलीडिस्पर्स मतलब इसका पाउडर का साइज क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, दैट इज अ पॉलीडिस्पर्स। ओके, सो मोस्ट ऑफ द फार्मा पाउडर आर पॉलीडिस्पर्स, एंड फॉर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ पाउडर्स, अरिथमेटिक मीन, देन ज्योमेट्रिक मीन, देन हार्मोनिक मीन, दे आर यूज्ड फॉर द कैरेक्टराइजिंग पाउडर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके जीपैट के लिए। ठीक है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, या फिर हार्मोनिक मीन क्या होता है, अगर इसके बारे में पढ़ना है आपको तो यू कैन रीड फ्रॉम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 बाय सीवीएस सुब्रमण्यम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज अ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन? सो डेफिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, सो इट इज अ नंबर ऑफ वेट ऑफ पार्टिकल लाइंग विद इन द सर्टेन रेंज। अगर मान लीजिए कि एक रेंज है, मतलब अगर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक 10 सेंटीमीटर का स्केल लिया आपने और उसमें पाउडर डाल दिया, तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल और वेट प्रेजेंट इन द सर्टेन रेंज। अगर 10 सेंटीमीटर का रेंज है आपका, डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का, या फिर आप इतना बहुत लंबा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लीजिए, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में आपके पाउडर का कितना पार्टिकल्स आता है, तो उसको बोलेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। So particle size distribution is the number or weight of particles lying within the certain range. Okay. Now this particle size distribution can be expressed by distribution curve, different distribution curve, data analysis, distribution curve, data analysis, like frequency distribution curve, then cumulative distribution curve, log normal distribution curve. Okay. So particle size distribution can be described or can be expressed by different kind of distribution curve data analysis. That is a frequency distribution, cumulative frequency distribution, मतलब पाउडर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसमें। ठीक है, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट।
Particle size of pharmaceutical powders are strictly maintained to get a optimum biological activity. ये pharmaceuticals में जो powder रहता है उसका particle size आपको यूनिफॉर्म रखना है, स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है. क्यों? टू गेट a desired pharmacological activity. ठीक है. और किस किस ड्रग का पार्टिकल साइज इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट एग्जांपल. ओके, सो एग्जांपल. So these are the drug whose particle size is to be strictly maintained to get a uniform bioavailability or uniform optimal activity. So in case of aspirin, aspirin is formulated in the dispersible tablet और उसका साइज कितना होना चाहिए? CU नंबर 180, मतलब फाइन पाउडर होना चाहिए, वेरी फाइन 180. ठीक है, फाइन पाउडर होना चाहिए एस्पिरिन का. हाइड्रोकॉर्टिजोन क्या है? स्टेरॉइड ड्रग है, उसको टॉपिकली यूज करते हैं इन केस ऑफ इजिमा एंड ऑल दैट. ठीक है, उसका वो अलग से जाएंगे फिर हम. सो उसका क्रीम यूज करते हैं, OW क्रीम. तो उसका जो पार्टिकल साइज रेंज होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 90% ऑफ पार्टिकल ऑफ हाइड्रोकॉर्टिजोन शुड बी इन अ रेंज ऑफ it should not be less than 5 micrometer and should not be more than 50 micrometer. ठीक है, सो उसका ऑप्टिमम एक्टिविटी मिल जाएगा. देन इंसुलिन इंजेक्शन, उसके इसमें दो टाइप होते हैं, एमरफोस इंजेक्शन होता है, एक क्रिस्टलाइन होता है. सो एमरफोस इंसुलिन इंजेक्शन, उसका जो पार्टिकल साइज है it should be less than 2 micrometer. It should be less than 2 micrometer. इंसुलिन का पाउडर जो है उसका रेंज क्या होना चाहिए पार्टिकल का? 10 to 40 माइक्रोमीटर. बीटामेथाजोन ये एक अगेंस्ट स्टेरॉइड है, स्टेरॉइडल ड्रग है, टॉपिकली यूज करते हैं. ठीक है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग. तो उसका भी साइज रेंज क्या होना चाहिए? 90% ऑफ दिस बीटामेथाजोन पार्टिकल शुड बी इन रेंज ऑफ 5 लेस देन 5 माइक्रोमीटर. सो ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, मेथड टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज. इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टुडेज लेक्चर. पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने के लिए आपके पास कितने मेथड्स है, वो मेथड में क्या होता है, कौन सा डायमीटर यूज करते हैं और उसका साइज कितना आता है. मतलब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से आप कितना साइज डिटरमाइन कर सकते हो, सेडिमेंटेशन से कितना कर सकते हो, आप कल्चर काउंटर मेथड से कितना कर सकते हो, ये. ठीक है, तो वन बाय वन. सो मेथड्स टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज. फर्स्ट वन इज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी. ठीक है, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मतलब क्या? आपको माइक्रोस्कोप लेना है, उसके नीचे कवर स्लाइड, आपका जो स्लाइड है कवर स्लाइड है, उसके बीच में आपको पाउडर रखना है और काउंट करना है. सो इट इज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी. सो इन केस ऑफ दिस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी यू हैव टू द प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर इज मेजर्ड. हियर प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर इज मेजर्ड and this optical microscopy is used for the particle size analysis of suspension, then globule size analysis of emulsion, then particle size in aerosol. Okay, so these are the application of optical microscopy. Okay, so diameter from now there is only one disadvantage of this optical microscopy, and what is that? कि यहाँ पे जो आपको डायमीटर मिलता है वो सिर्फ 2 डायमेंशनल होता है. ठीक है, सो diameter obtained in the optical microscopy, it is only of 2 dimension. Only 2 dimension diameter is obtained. Then again this process is very slow, tedious, and large amount of sample is required. Large number of particles you have to measure. Optical microscopy you are getting a projected area diameter. Okay, that is measured, and suspension and emulsion globule size is they are the measured using optical microscopy. And the only disadvantage of this method is only 2-dimensional diameter is obtained. It is a very tedious and slow method. Again, large number of sample is required, large number of particles you have to measure. Okay, so that is the disadvantage. Then again next method is sieving method. Sieving method means आपको different kind का sieve जो होता है वो method यूज करना है. ठीक है, so mostly it is used in the tablet and capsule. This method is used in the tablet and capsule section to determine the particle size. Okay, sieve diameter is estimated. कौन सा diameter होता है इसमें? sieve diameter. इसमें कौन सा होता है? projected area diameter. यहाँ पे मिलता है आपको sieve diameter. Okay, now this has advantages. This disadvantages include lower limit of 50 micron and clogging. मतलब ये जो sieving method है उसका एक disadvantage है कि आप 50 micron से ज्यादा particle size, मतलब 50 माइक्रोन से कम पार्टिकल साइज मेजर नहीं कर सकते.
So lower limit to measure the particle size during using sieving method is a 50 माइक्रोन 50 माइक्रोन से कम पार्टिकल साइज आप इसमें मेजर नहीं कर सकते हो, मैं कम बोल रहा हूँ, लोअर लिमिट है इसका, ठीक है। देन क्लॉगिंग, जो सीव्स यूज करते हैं अपन, सो दे फ्रिक्वेंटली गेट्स क्लॉग्ड, उसमें वो पाउडर का क्लॉगिंग होता है फ्रिक्वेंटली, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द सेडिमेंटेशन मेथड, सो मोस्टली इट इज यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सस्पेंशन, इमल्शन, then determination of molecular weight of polymers. Okay, so by sedimentation method you are getting a Stokes diameter. Stokes diameter आपको यहाँ पे मिल रहा है, Stokes diameter is measured in a sedimentation. ये सब याद रखो, इसमें क्या आता है projected area diameter, sieving method में क्या है आपका sieve diameter, sedimentation में क्या है Stokes diameter, ये सब याद रखो क्योंकि ये सब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है जीपीएट। Now using sedimentation method of particle size determination, योर सस्पेंशन शुड हैव 1 to 2%, कि आपको 1 या 2% डाइल्यूटेड सस्पेंशन ही यूज करना है, क्योंकि आपको सेडिमेंटेशन से पार्टिकल साइज मेजर करने के लिए उतना ही लगता है, ठीक है। उससे ज्यादा अगर लेंगे सेडिमेंट मतलब सस्पेंशन, कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन अगर आप लेंगे तो प्रॉपरली यू विल नॉट बी एबल प्रॉपरली डिटरमाइन द पार्टिकल साइज। अगर कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन लेंगे तो उसमें आप मेजर नहीं कर सकते हो सेडिमेंटेशन से। तो सेडिमेंटेशन से आपको पार्टिकल साइज मेजर करने के लिए आपको जो सस्पेंशन है वो डाइल्यूट होना चाहिए 1 to 2%। ओके, द फ्लो ऑफ पार्टिकल शुड बी लैमिनार, कि इसमें ऐसा होना चाहिए कि रेट फ्लो मतलब क्या है, ये कहाँ पे फ्लो हो रहा है, ये डाउन फ्लो हो रहा है, सेटल हो रहा है ना, सेटल। सेडिमेंटेशन मतलब क्या, कि मान लीजिए आपके पास एक टैंक है छोटा सा, उसमें आपने पाउडर डाला, तो पाउडर कहाँ पे जाएगा, सेडिमेंट होके नीचे जाएगा। तो सेडिमेंटेशन मतलब फ्लो हो रहा है ना वो पाउडर का, फ्लो फ्रॉम सरफेस टू द बॉटम, ठीक है। सो दैट फ्लो ऑफ पार्टिकल शुड बी लैमिनार। ओके, तो आपको आपने पढ़ा होगा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, मैंने भी बोला था बच्चों को, देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्लो, लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। ओके, इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 200 then it is a laminar, if it is more than 200 and up to 400 it is a turbulent. So if Reynolds number is more than 0.2 it is a turbulent flow. Okay, and this method is applicable to predict the particle size exactly if Reynolds number is not exceeding 0.2. मतलब आपका यहाँ पे जो फ्लो है वो क्या होना चाहिए, लैमिनार फ्लो होना चाहिए। अगर लैमिनार ही फ्लो होगा, लैमिनार ही आपका सेटलिंग ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल सेटल हो रहे हैं, जो सेडिमेंट हो रहे हैं, उसका अगर लैमिनार ही हो रहे तो ही आप डिटरमाइन कर सकते हो। अगर उसमें कोई टर्बुलेंस आ गया, मान लीजिए कि आपने चेक किया उसको तो उसमें टर्बुलेंस आ गया, तो वहां पे आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। ओके, बाय सेडिमेंटेशन। सो रिमेंबर, नेक्स्ट वन इज Anderson pipette method. Okay, again Anderson pipette method is also it is also a method of particle size determination, and it is also because of sedimentation. Okay, so Anderson pipette method is also a particle size determination method by sedimentation. याद रखो, इसके ऊपर लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था। Okay, so Anderson pipette is a method of particle size determination by sedimentation. याद रखो, लास्ट ईयर GPAT 2021 में क्वेश्चन था कि एंडरसन पार्टिकल साइज डिटरमिनेशन बाय सेडिमेंटेशन मेथड, और नीचे ऑप्शन में एक ये था एंडरसन पिपेट, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो एंडरसन पिपेट मेथड पार्टिकल साइज बाय सेडिमेंटेशन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि 550 ml का एक सिलेंडर होता है, सिलिंड्रिकल वेसल होता है, और उसमें 10 ml का पिपेट होता है। पेन पिपेट इज प्लेस्ड इन द सिलेंडर, लोअर टिप इज अबाउट 20 सेंटीमीटर बिलो ऑफ द सरफेस ऑफ सस्पेंशन। इसके बारे में इसका एपरेटस अगर देखना है आपको तो आप देख सकते हो बुक में उसका एपरेटस है, लेकिन ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है कि एंडरसन पिपेट मेथड इज अ मेथड फॉर साइज पार्टिकल साइज डिटरमिनेशन बाय सेडिमेंटेशन, इतना याद रखो। और उसमें क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है कि 550 ml का सिलिंड्रिकल वेसल होता है उसमें, और 10 ml का पिपेट होता है, इतना याद रखो। ये जीपैट के लिए इंपॉर्टेंट है, नाइपर के लिए इंपॉर्टेंट ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंडक्टिविटी मेथड। अब कंडक्टिविटी मेथड मतलब क्या, समथिंग इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज। ओके, इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रीम, रिमेंबर कंडक्टिविटी मेथड इज आल्सो नोन एज स्ट्रीम स्कैनिंग और स्ट्रीम काउंटिंग मेथड, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, ठीक है।
Conductivity method is also known as stream scanning method or stream counting method. Then particle volume is measured and then it is converted into particle diameter. Size is expressed as a volume diameter, and method is useful in the study of particle growth in suspension, solution, dissolution of drug, effect, antimicrobial effect of antimicrobial effect on growth of microbes. Then sodium chloride is used as a conducting medium in this method, and 4000 particle per second is measured. Okay, so conductivity method जो है, it is the only method which is a stream counting method or it is a stream scanning method. कंडक्टिविटी मेथड जो है उसमें कल्टर काउंटर यूज करते हैं, ठीक है, कल्टर काउंटर, ठीक है, उसमें तो इसमें जो कंडक्टिंग मीडियम जो होता है वो यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, और कितने पार्टिकल मेजर करते हैं पर सेकंड, 4000 पार्टिकल पर सेकंड आर काउंटेड. ओके, एंड इट इज यूजफुल इन द स्टडी ऑफ पार्टिकल growth in the suspension, solution, dissolution of drug. It is also useful in the study of dissolution of drug, effect of antimicrobial agent on the growth of microbe. So उसका होता है ना कि एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, जब एंटीमाइक्रोबियल एजेंट का आप टेस्ट करते हो तो माइक्रोबियल ग्रोथ कितना कम हो गया, कितना नहीं हुआ, कितना मर गए, कितना जिंदा है, वो देखते हैं आप कैसे, कंडक्टिविटी मेथड. Only disadvantage of this method is it is unsuitable for polar and highly water soluble material due to solvation effect. ठीक है, इतना ही याद रखो. बाकी नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ पाउडर सरफेस एरिया. डिटर्मिनेशन ऑफ पाउडर सरफेस एरिया, क्या आपके पाउडर है उसका सरफेस एरिया कितना है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेटेड यूजिंग पार्टिकल साइज डाटा बाय अबव मेथड. जो पार्टिकल साइज डाटा मिला आपको, आपने जो देखा सेडिमेंटेशन मेथड, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, आपने कंडक्टिव मेथड देखा, उसमें आपको पार्टिकल साइज का आइडिया आ जाता है. ठीक है, तो उसके बेसिस पे ही पार्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ पाउडर सरफेस एरिया इज डन. पाउडर सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो अबाउ डाटा जो आपको मिला है उसके बेसिस पे करते हैं. स्पेसिफिक सरफेस एरिया, व्हाट इज मीन बाय स्पेसिफिक सरफेस एरिया, व्हाट इज मीन बाय स्पेसिफिक सरफेस एरिया. सो इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टर्म. स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज द सरफेस एरिया पर यूनिट वेट or unit volume. Specific surface area of powder is nothing but the surface area of powder per unit weight or per unit volume of the material. That is a specific surface area of powder. Okay. Now next method is adds of. इसका जो मेथड है surface area determination के लिए, surface area measure करने के लिए जो मेथड है उसको बोलते हैं adsorption method. Okay. इसमें क्या करते हैं कि नाइट्रोजन गैस है वो यूज करते हैं. ठीक है, नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं. ठीक है, और उसका मतलब एडसॉर्प्शन, ये जो नाइट्रोजन गैस है वो एडसॉर्ब होता है आपके पार्टिकल्स के ऊपर. तो एक पार्टिकल है, मान लीजिए कि एक पार्टिकल है, उसके ऊपर कितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडसॉर्ब हो गया. ठीक है, उसके बेसिस पे आप उसका सरफेस एरिया मेजर कर सकते हो. कैसे, आपको नाइट्रोजन का जो आइटम है उसका जो साइज है वो मालूम है कि अगर एक नाइट्रोजन का आइटम अगर एक पार्टिकल पे गया तो वो पार्टिकल का साइज होगा 16 एंगस्ट्रॉम यूनिट. सो 1 नाइट्रोजन इज इक्वल टू 16 एंगस्ट्रॉम यूनिट. ये याद रखो, ये नाइपर में क्वेश्चन पूछते हैं. ओके, सो 1 नाइट्रोजन इज इक्वल टू 16 एंगस्ट्रॉम यूनिट. ओके, सो मान लीजिए कि एक पार्टिकल है उसके ऊपर 5 नाइट्रोजन के आइटम चिपक गए, एडसॉर्ब हो गए. ठीक है, तो मतलब 80 एंगस्ट्रॉम यूनिट उसका सरफेस एरिया होगा, 80 एंगस्ट्रॉम यूनिट. ओके, next one is air permeability method. Okay, air permeability method. Surface diameter is estimated in this method. Okay, surface diameter is estimated in this method. Surface diameter of powder is estimated in this method. It is simple and quick determination is there in this method, and it is used for controlling batch to batch variation of different drugs like bifenium hydronaphthoate, which is the anthelmintic drug, and ग्रीजियोफुल्विन विच इज एंटीफंगल ड्रग. कि एयर परमेबिलिटी मेथड जो है, देखो पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन का मेथड कौन सा है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सेडिमेंटेशन, बाद में आपका क्या है कंडक्टिविटी मेथड. दीज आर द मेथड टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज. अभी पार्टिकल सरफेस एरिया मेजर करने के लिए कौन सा है, एडसॉर्प्शन मेथड है और एयर परमेबिलिटी मेथड है.
याद रखो कि पार्टिकल साइज के लिए कौन से मेथड है, पार्टिकल सरफेस एरिया के लिए कौन से मेथड है, ठीक है। एडसॉर्प्शन एंड एयर परमेबिलिटी मेथड, दीज आर द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द powder surface area, whereas a conductivity method, then your sedimentation method, then your optical microscopy, these are the method for determination of particle size. Okay, remember here one thing, Kozny-Karaman equation is related with the एयर परमेबिलिटी मेथड। ओके, तो इसमें सरफेस एरिया कैसे मेजर करते हैं, कोजनी-कैरामन इक्वेशन इज यूज्ड टू एस्टिमेट द सरफेस एरिया बाय दिस मेथड। याद रखो ये इक्वेशन क्या होता है, वो सब पढ़ना है तो बुक में से पढ़ लो, ठीक है। दिस कोजनी-कैरामन इक्वेशन इज रिलेटेड विद द एयर परमेबिलिटी मेथड ऑफ सरफेस एरिया डिटरमिनेशन ऑफ पाउडर, ठीक है। सरफेस एरिया एयर परमेबिलिटी मेथड कोजनी-कैरामन इक्वेशन। Okay, so a surface size of particle, then surface area of particle, these two was a fundamental properties of powder. Now derived properties of powder, particle size, diameter, these are the fundamental property of powder. Then okay, particle size, diameter, surface area, these are the fundamental properties of powder, whereas volume, then density, porosity, these are the derived properties of powder. एंड डिराइव्ड प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर में मतलब क्या कि जो है वॉल्यूम, डेंसिटी, पोरोसिटी, जो पाउडर का वॉल्यूम है, डेंसिटी है, पोरोसिटी है, वो कैसे मेजर करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, ठीक है। मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टीज साइज, डायमीटर आपको मालूम है तो आपको साइज अगर मालूम है, आपको डायमीटर मालूम है तो आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, उसका डेंसिटी निकाल सकते हो, पोरोसिटी निकाल सकते हो। सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज द डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कौन से है, डिराइव्ड प्रॉपर्टीज कौन से है, याद रखो, ठीक है। Now influence of derived properties of powder, porosity किसके लिए influence करता है, porosity जो है वो करेगा affect आपका dissolution, okay, dissolution affect करता है porosity। उसके बाद bulk density क्या affect करता है, selection of container for the packing, कि अगर उसका हाईली मतलब bulk density ज्यादा है वो पाउडर का तो आपको strong container लगेगा, अगर bulk density कम है पाउडर का तो आपको थोड़ा सा weak container भी यूज करेगा तो भी चलेगा। बल्क डेंसिटी क्या करेगा, डिटरमाइन, मतलब ये इट इज यूजफुल इन द सिलेक्शन ऑफ कंटेनर फॉर फॉर्मुलेशन। पोरोसिटी इज यूजफुल इन द सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट फॉर डिसोल्यूशन स्टडी। एंड फ्लो प्रॉपर्टी क्या करेंगे, फ्लो प्रॉपर्टी इज यूजफुल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोसेज। अगर फ्लो यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म डोसेज फॉर्म मिलेगा। मान लीजिए कि आपका टैबलेट का पंचिंग चल रहा है, ठीक है, आपने ग्रैन्युल्स बनाया, मशीन में डाला है, मशीन से ग्रैन्युल्स होपर से आपका डाई कैविटी में आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जो फ्लो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अगर वो फ्लो यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर आपका टैबलेट यूनिफॉर्म नहीं बनेगा। टैबलेट यूनिफॉर्म नहीं बनेगा तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोसेज नहीं मिलेगा। अगर फ्लो प्रॉपर है, यूनिफॉर्म है, तो आपका टैबलेट भी यूनिफॉर्म साइज का बनेगा, ठीक है, यूनिफॉर्म साइज का बनेगा, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोसेज विल बी एस्टेब्लिश्ड। सो फ्लो प्रॉपर्टी विल इन्फ्लुएंस द यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोसेज, bulk density will influence the selection criteria for the container, then porosity will influence the dissolution of drug, okay, so these are the derived properties, we will discuss one by one, okay। derived properties of powder, so first one is the true density, true density मतलब क्या, mass upon volume। याद रखो डेंसिटी मतलब क्या, mass upon volume, कि उसका वेट कितना है, उसका मास कितना है, उसके डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो ट्रू डेंसिटी इज नथिंग बट द वेट ऑफ पाउडर डिवाइड बाय ट्रू वॉल्यूम ऑफ पाउडर, ठीक है। ट्रू डेंसिटी इज वेट ऑफ पाउडर डिवाइड बाय ट्रू वॉल्यूम ऑफ पाउडर, ठीक है, ये एक टर्म है। उसके बाद नाउ ट्रू डेंसिटी इज डिटरमाइंड, इट इज मेजर्ड, इट इज कैलकुलेटेड बाय मेथड नोन एज हीलियम और नाइट्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। ट्रू डेंसिटी इज डिटरमाइंड बाय हीलियम और नाइट्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। True density is measured by helium or nitrogen displacement method and it is known as a cycnometer. Again liquid displacement method is also used. उसमें liquid displacement method में क्या आता है, वाटर इथाइल अल्कोहल यूज करते हैं। ये डिस्प्लेस मतलब क्या है ये समझ में आना चाहिए आपको, कि मान लीजिए कि पाउडर है, ठीक है, पाउडर है तो पाउडर पूरा कॉम्पैक्ट तो नहीं है, उसमें कुछ पोर्स भी होंगे, उसमें कुछ एयर स्पेसेस भी होंगे, इसमें कुछ क्रिवाइसिस भी होंगे जो पाउडर में। अभी वो जो पाउडर है उसका जो स्पेस है उसमें ये नाइट्रोजन चला जाएगा, हीलियम चला जाएगा और बैठ जाएगा वहां पे,
या फिर लिक्विड मेथड यूज करेंगे तो उसमें इथाइल अल्कोहल जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल और नाइट्रोजन और हेलियम that that is adds that is a that occupies the space that is nothing but the void volume। वो एम्प्टी स्पेस है तभी तो वो ऑक्यूपाई किया है ना उसने, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अपन ट्रू डेंसिटी, उसके बेसिस पे अपन ट्रू वॉल्यूम निकल सकते हैं। मतलब देखिए मान लीजिए एक पाउडर लिया आपने सिलेंडर में, तो मान लीजिए उसका सिलेंडर में पाउडर लिया आपने, वे करके 10 ग्राम वे किया और सिलेंडर में लिया मेजरिंग सिलेंडर में, तो उसका वॉल्यूम आ गया मान लीजिए कि आपका 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 ml आ गया उसका वॉल्यूम। तो उसका वेट कितना था 10 ग्राम, उसका वॉल्यूम कितना आया 20। तो वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डेंसिटी मिलेगा। लेकिन ये जो डेंसिटी इट इज नॉट अ ट्रू डेंसिटी। वो जो पाउडर है वो फ्लक्स है, मतलब वो पूरा कॉम्प्रेस नहीं है, ठीक है। मतलब एक में के साथ उसमें कुछ स्पेस जमा है, वॉइड वॉल्यूम, जिसको अपन वाइड बोलते हैं, इंट्रा पार्टिकुलर स्पेस, उसको वाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो है, तो वो जब अपन टैप करेंगे तो वो पूरा पाउडर ट्रू डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रू वॉल्यूम डिटरमाइन करने के लिए यू हैव टू यूज दिस मेथड, हेलियम डिस्प्लेसमेंट मेथड और नाइट्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड और लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज अ ग्रेन्यूल डेंसिटी। ग्रेन्यूल डेंसिटी, तो ये क्या होता है ग्रेन्यूल डेंसिटी? ग्रेन्यूल डेंसिटी, सो इट इज अ ग्रेन्यूल डेंसिटी, ग्रेन्यूल वेट डिवाइडेड बाय ग्रेन्यूल वॉल्यूम। ग्रेन्यूल्स जो है आपने बनाए हैं टैबलेट के लिए, मतलब आप डायरेक्टली कंप्रेस तो नहीं कर सकते ना, कुछ पाउडर होते हैं डायरेक्टली कंप्रेसिबल, पर मोस्ट ऑफ द पाउडर्स आर नॉट डायरेक्टली कंप्रेसिबल। यू हैव टू मेक ग्रेन्यूल्स। आप ग्रेन्यूल्स बनाएंगे, ग्रेन्यूल्स, ठीक है, टैबलेट के लिए। तो ग्रेन्यूल का वेट डिवाइडेड बाय ग्रेन्यूल का वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट द ग्रेन्यूल डेंसिटी। एंड फॉर मेजरमेंट ऑफ ग्रेन्यूल डेंसिटी mercury displacement method is used. Remember, mercury displacement method is used for granular density. इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। मर्क्यूरी डिस्प्लेसमेंट मेथड किसके लिए है? ग्रेनुलर डेंसिटी के लिए। और हेलियम नाइट्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड किसके लिए है? ट्रू डेंसिटी के लिए, ठीक है। याद रखो, मर्क्यूरी डिस्प्लेसमेंट मेथड ग्रेनुलर डेंसिटी, नाइट्रोजन हेलियम और लिक्विड डिस्प्लेसमेंट ट्रू डेंसिटी, ठीक है। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग और नॉट? Bulk density. Bulk density is nothing but the mass of powder divided by bulk volume of powder. Okay. Now light powder or heavy powder. There are two terms. Depending upon the bulk density, powder may be classified as a light powder or heavy powder. ठीक है, कि पाउडर को लाइट पाउडर बोलेंगे या फिर हेवी पाउडर बोलेंगे, किसके बेसिस पे? बल्क डेंसिटी। अभी अगर कोई पाउडर का बल्क डेंसिटी कम है तो उसको बोलेंगे लाइट पाउडर। कोई पाउडर का, किसी पाउडर का बल्क डेंसिटी ज्यादा है तो उसको बोलेंगे हेवी पाउडर, ठीक है। इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया था। द टर्म लाइट इंडिकेट लो बल्क डेंसिटी, ठीक है, आपने क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है, आता रहता है व्हाट्सएप फेसबुक पे, ठीक है। तो क्यों आता है? लाइट पाउडर मीन्स क्या? हाई बल्क वॉल्यूम, उसका जो बल्क वॉल्यूम है वो हाई बल्क वॉल्यूम, वॉल्यूम बोल रहा हूं मैं ना, डेंसिटी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। लाइट पाउडर मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो हाई रहेगा, उसकी वजह से क्या रहेगा? उसका बल्क डेंसिटी क्या रहेगा? कम रहेगा, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम कहाँ पे आता है? डिवाइड में आता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो क्या आएगा? 5। मान लीजिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो क्या आएगा? 1 मतलब 0.5 आएगा। तो जैसे ही ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। दैट्स वाई लाइट पाउडर जो होता है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, बल्क वॉल्यूम, और उसकी वजह से उसका बल्क डेंसिटी कम होता है। मतलब इतना याद रखोगे आप, ये थोड़ा डीप में होगा, आप इतना याद रखो कि लाइट पाउडर मीन्स लो बल्क डेंसिटी, हेवी पाउडर मीन्स हाई बल्क डेंसिटी, ठीक है। इतना याद रखो, ये ज्यादा डीप में पढ़ना है तो ये बात है, इसमें दिया है, बुक में दिया है। नेक्स्ट वन इज अ बल्क डेंसिटी इज यूज्ड टू चेक द यूनिफॉर्मिटी क्वालिटी ऑफ केमिकल्स। सिलेक्शन ऑफ एम्प्टी कैप्सूल, ओके। जैसे अगर बल्क डेंसिटी मालूम है आपको पाउडर का, तो आप कैप्सूल कौन सा यूज करना है, क्या नहीं करना है। ये लोअर द बल्क वॉल्यूम लोअर विल बी द हायर द बल्क वॉल्यूम लोअर विल बी द बल्क डेंसिटी एंड बिगर इज द लोअर द बल्क वॉल्यूम हायर विल बी द बल्क डेंसिटी एंड बिगर विल बी द साइज ऑफ कैप्सूल रिक्वायर्ड। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। लोअर विल बी द बल्क वॉल्यूम, यहाँ पे हायर विल बी द बल्क डेंसिटी एंड लार्जर कैप्सूल साइज इज रिक्वायर्ड, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट टर्म इज अ पोरोसिटी. कि पोरोसिटी क्या है? पोरोसिटी इट इज आल्सो नोन एज अ वॉइड्स. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन and it is nothing but the wide volume divided by bulk volume. Okay, porosity is nothing but the bulk volume minus true volume divided by bulk volume. आप बोलेंगे यहाँ पे wide volume लिखा है, wide volume divided by bulk volume लिखा है, यहाँ पे अलग लिखा है. कैसे? ये wide volume जो है, wide volume is nothing but the bulk volume minus true volume. That is nothing but the porosity. Please mute your mic. Next term is a true volume. Volume of powder itself. Volume of powder itself is nothing but the true volume. Next one is a granule volume. Volume of powder plus intra particular spaces. Okay, that is the volume of pores and crevices. Powder में pores भी होंगे, crevices भी होंगे, तो उसको बोलेंगे granule volume. Granule volume क्या है? Volume of powder plus intra particular spaces. Okay, bulk volume क्या होता है? What is bulk volume? Volume of powder itself plus volume of intra particular spaces. Volume of intra particular spaces. मतलब इसमें बल्क वॉल्यूम में क्या आएगा? उसका ट्रू वॉल्यूम आएगा, उसका इंटर पार्टिकुलर स्पेस आएगा, उसका वॉइड वॉल्यूम भी आएगा. ठीक है. फ्लो प्रॉपर्टीज इज अफेक्टेड बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल. अभी इसको मैं एक बार रिकॉर्डिंग सेव कर लेता हूँ और बाद में फिर से कंटिन्यू.